So point number 44, chronic access capacity, production capacity कब रहती है? In which market? Monopolistic competition, that is लॉन्ग रन में कंसिस्टेंटली एक्सेस कैपेसिटी कहाँ रहती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रहती है. मतलब आप चाहें, आप बना रहे हो 6000 यूनिट्स, पर आप चाहें आपकी कैपेसिटी 10,000 की है, आप और भी बना सकते हो. परचेज ओनली मेड इन इंडिया, जड़ी बूटी टूथपेस्ट will impact difference of market towards oligopoly. सिर्फ मेड इन इंडिया खरीदो, जड़ी बूटी टूथपेस्ट मतलब जो इंडियन चीज है वो लो, तो ये किसकी तरफ लेके जा रहा है आपको? ओलिगोपोली की तरफ. A firm is producing level of output such that marginal revenue is greater than marginal cost. What should the firm do to maximize profit? अभी रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो और प्रोडक्शन करो और बेचो ना, तो और कमाओगे. तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए when your marginal revenue is greater than marginal cost, increase the output. Okay? Marginal revenue क्या होता है? Marginal means additional or change. The change in price into quantity due to a 1 unit change in output. That is formula है ना marginal revenue का, total revenue of nth unit minus total revenue of n minus 1 unit, that is 10th unit, that is last unit minus second last unit. करे तो अपने को marginal या additional revenue मिलता है. तो एग्जाम में पूछ सकता है the change in price into quantity due to 1 unit change in output is called as, आंसर क्या होगा? marginal revenue. शेप ऑफ डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन. अब तो बना बना के थक गए. परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेयर प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. इन शॉर्ट रन और ओलिगोपोलिस्टिक फर्म विल अर्न. शॉर्ट रन में ओलिगोपोलिस्टिक फर्म कुछ भी कमा सकती है. शॉर्ट रन है, एनी ऑफ दीज इज पॉसिबल. प्रॉफिट, लॉसेस, ब्रेक इवन, एनी ऑफ दीज इज पॉसिबल. तो आंसर इज प्रॉफिट भी कर सकती है, लॉसेस भी कर सकती है, ब्रेक इवन भी कर सकती है शॉर्ट रन में ओलिगोपोली फर्म. व्हाट कैन नॉट बी कॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? आंसर इज टैक्स डिफरेंशिएशन. क्योंकि एक तरह के प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट तो एक तरह का ही टैक्स लेगी ना, तुम उसको अलग अलग मार्केट में बेच दो अलग अलग प्राइस पे. तो व्हाट कैन नॉट बी कॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन is tax differentiation. When price discrimination extends to 2 or more countries, एक कंट्री में एक प्राइस पे बेच रहे हो वही प्रोडक्ट और दूसरी कंट्री में सस्ते में बेच रहे हो, it is called as dumping. That is, the price discrimination went international, that is extend to 2 or more countries, it is called as dumping. A monopoly's demand curve is same as its average revenue curve. Monopoly का demand curve same as AR curve. यदि याद हो शेप, AR के नीचे MR and AR is also the demand curve. Monopoly's demand curve is same as your average revenue curve. Dash divided the degree of price discrimination into 3 categories. किसने किया? प्रोफेसर पिगू ने किया. उनका नाम याद रखना पड़ेगा. The demand curve of monopoly firm is same as that of the total market demand. Why? मोनोपोली में सिंगल सेलर है, और जब सिंगल सेलर है मोनोपोली में तब जो फर्म है वो इंडस्ट्री के बराबर है. तो जो टोटल मार्केट डिमांड कर्व है वही तो डिमांड कर्व है, सेम, क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री सेम है. When a monopolist charges different prices to different customer, it is called as price discrimination of first order.
तो सेकेंड ऑर्डर क्या है? When a monopolistic charges different prices for different units of the same commodity, it is called as price discrimination of second order. यदि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज होती है बाय मोनोपोलिस्टिक, इट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. बट यदि ये पूछ ले कौन से ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का. अब सुनो सेकेंड ऑर्डर. When monopolistic charges different prices for different units, same commodity का 3 या 2 different prices for different units, it is called as price discrimination of second order. When a monopolistic divides the market into 2 or 3 groups and charges different prices from each group, it is called as price discrimination of third order. अब इसको याद कैसे करें? सुनो. Different prices of different customers, first order. Different units word आ रहा है, of same commodity, second order. And जब group word आ रहा है तो it is third order. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट चेंज करना, चार्ज करना. कितने ऑर्डर होते हैं? 1 2 3. फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर customer is the keyword. Second order units is the keyword. Third order groups is the keyword. And oligopoly firm is known for price rigidity, sticky price. In what way oligopoly firm is similar to monopolistic firm? Differentiated products. Monopolistic firm में भी products differentiated होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, सोप्स एंड शैम्पूस एडवर्टाइजमेंट होता है उधर, जिसको डव से नहाना है डव से नहाएगा, जिसको पैसे से नहाना है पैसे से नहाएगा, जिसको लाइफबॉय से नहाना है वो यूज करे. ठीक है. ओलिगोपोली में भी डिफरेंट, जैसे व्हीकल का मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली. तो आप पता कर सकते हो ना कि ये मारुति की गाड़ी है, ये सुजुकी की गाड़ी है, ये होंडा की गाड़ी है. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, सब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ही काम आती है. बट व्हीकल्स इज एन एग्जांपल फॉर ओलिगोपोली मार्केट, राइट? तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता है और ओलिगोपोली मार्केट में भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता है. अच्छा, वो कौन सा मार्केट है जिसमें एमआर कर्व होता ही नहीं? डिसकंटिन्यूअस एमआर कर्व है. आंसर बता सकते हो? वो कौन सा मार्केट? क्या बोला? जोर से बोलो. देखो एमआर कर्व गायब है, वो कौन सा मार्केट है? जनरली तो परफेक्ट कंपटीशन ही होगा ना, उसमें एक ही होता है ना लेंस. लेकिन होता तो है ना, कर्व गायब थोड़ी ना हुआ. देखो यदि मैं परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम बनाऊंगी, ये परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन एमआर और प्राइस होता है, तो प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना एमआर. यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर कोलाइड कर रहे हैं, बट हैं दोनों प्रेजेंट है. तो परफेक्ट कंपटीशन में मैं ये नहीं कह सकती कि एमआर कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जिस्ट कर रहा है पर एआर के साथ कोलाइड कर रहा है. ये बात हुई परफेक्ट कंपटीशन की. अब मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली, सिर्फ इलास्टिसिटी चेंज होती है, बट ऐसे दिखता है ना एमआर तो दिखता है ना एंड एमआर दिख रहा है ना, तो ये भी नहीं बोल सकती कि यहाँ एमआर डिसकंटिन्यूअस है. अब बात करो ओलिगोपोली की, और ध्यान से सुनो. यदि एग्जाम में पूछा वो कौन सा मार्केट है जिसमें ना एमआर का डिसकंटिन्यूअस दिख ही नहीं रहा है, तो तुम यदि ओलिगोपोली का मार्केट का ग्राफ देखोगे, पी प्राइस, क्यू क्वांटिटी और ये किंग्ड डिमांड कर्व, ये एआर है. तुमने यहाँ पर ऐसे एमआर देखा है? चेक करो अपना बुक. है ही नहीं, एमआर कर्व नहीं है. तो
in oligopoly market, please remember that in oligopoly market MR is discontinuous नहीं है हुआ. एंड वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एआर कर्व की इलास्टिसिटी किंक से पहले कैसी है और किंक के बाद में कैसी है. किंक से पहले कैसी है इलास्टिसिटी, इट इज लाइक दिस, और किंक के बाद में ऐसी है. तो यदि मैं बोलूं किंग के बाद में यहाँ स्टीपर दिख रहा है मेरे को, और किंग के पहले यार का फ्लैटर दिख रहा है मेरे को, तो तुम इलास्टिसिटी बताओ. फ्लैटर कर्व की इलास्टिसिटी कैसे होती है और स्टीपर कर्व की इलास्टिसिटी कैसे होती है, तुम बताओ. इलास्टिसिटी पूछा, कितने तरह की इलास्टिसिटी है. इनफाइनाइट हो सकता है, रिलेटिवली ना, हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकता है. तो इलास्टिसिटी कैसी, इतना सा क्वेश्चन पूछा है, ऊपर कैसी. ग्रेटर देन 1 और स्टीपर का लेस देन 1 ना, फ्लैटर का. स्टीपर जो है उसकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ये बात ध्यान पड़ेगी. ओलिगोपोली में किंग के नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टीपर है, वर्ड भी याद रखो, और उसकी इलास्टिसिटी लेस देन वर्ड है 1 है, डिग्री भी याद रखो. एंड ऊपर वाला जो पार्ट है ओलिगोपोली में जो फ्लैटर है, वर्ड भी याद रखो, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, डिग्री भी याद रखो. याद रखो कि यदि मैं इंफिनिटी बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक. यदि मैं डिग्री 0 बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक. यदि मैं 1 वर्ड यूज कर रही हूँ इलास्टिसिटी के लिए, या मैं बोल रही हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या मैं बोलती हूँ यूनिटरी, ठीक है, दैट इज यूनिट इलास्टिक. यदि मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो क्या होगा, वो रिलेटिवली व्हाट वर्ड बोलो, उसको कंप्लीट करो. रिलेटिवली इलास्टिक. रिलेटिवली कौन सा वाला पूछ रहे, स्टीपर की फ्लैटर वाला पूछ, स्टीपर वाला. रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 वर्ड यूज किया, या स्टीपर वर्ड यूज किया, या रिलेटिवली इनइलास्टिक वर्ड यूज किया, सेम बात बोल रही हूँ मैं. यदि मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, if I am saying elasticity is greater than 1, or if I am saying it is a flatter curve, or I am saying it is relatively elastic, I am saying one and the same thing, and in MCQ they can ask anyways, no. अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है आपको, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कौन से मार्केट में होते हैं. Perfect competition. ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं. सिंगल बायर कौन से मार्केट में होता है, मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी में होता है. Okay. मैं एक और चीज ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. मैं कुछ सप्लाई का कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखो. ये एक सप्लाई कर्व मैंने ड्रॉ किया. एक सप्लाई कर्व मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ. और एक सप्लाई कर्व मैं ये ड्रॉ.
ओरिजिन है सबका, ये जो बाहर है ये पॉइंट को मैं टी पॉइंट बोल रही हूँ, ये यहाँ पर अंदर की साइड में जो है मैं उसको टी पॉइंट बोल रही हूँ, और ये जो यहाँ पे आ रहा है मैं उसको भी टी पॉइंट ले रही हूँ। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसका नाम दे रही हूँ आर एम, आर एम, आर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम पहले लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यदि मुझे यहाँ पे ढूंढना है तो ये देखो एम टी इज इक्वल टू ओ एम। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस केस में जहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, एम टी अपॉन ओ एम, कांट यू सी दैट दे आर इक्वल। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी वो होगी 1। ये बात समझ में नहीं आई कि नहीं, पहले तो ये बता दो। आई है। अब हम क्या सेकंड हमने सीखा? जिसमें ये यहाँ पर है, टी इधर है, ओ इधर है, ठीक है, दैट इज इनसाइड। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू एम टी अपॉन ओ एन। जहां पे मुझे आंख से दिख रहा है कि एम टी इज लेसर देन ओ एम, ओरिजिन के अंदर है ये, एम टी इज लेसर देन ओ एम, ऐसे में इलास्टिसिटी कैसी होगी? दैट इज एम टी, यदि ये 3 है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो ओ एम 4 सेंटीमीटर, तो 3/4 is equal to what? 0.75. Do you agree? So is it Yes. more than 1 या is it less than 1? Less than 1. तो जब भी वो ओरिजिन के अंदर सप्लाई का होगा तो याद रखना पड़ेगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और उसको हम क्या बोलते हैं? लेस देन यूनिटी। पॉइंट टू बी नोटेड। अब यदि ये पॉइंट ओरिजिन से बाहर, हर ग्राफ के 4 पॉइंट, 4 मतलब ये खंड होते हैं, 1 2 3 4। हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो एक बस इस वाले पार्ट को लेके ड्रॉ करते हैं, बराबर है। बट इस वाले में तुम देख रहे हो कि सप्लाई कर्व यहाँ से बाहर निकल के इधर चला गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब ये वाला पार्ट बाहर निकल गया तो दैट इज, यदि अब मैं यहाँ बोलूंगी एम टी अपॉन ओ एम, तो एम टी यहाँ पे बड़ा लग रहा है ना, इफ दिस इज 4 एंड ओ एम इज जस्ट 3, 4/3 कितना होता है? आई कैन से दैट एम टी is greater than OM. सामने दिख रहा है MT is 4 but OM is just 3. When MT is greater than OM, elasticity कैसा होगा? Elasticity is greater than 1. Greater than 1. ये थोड़ा सा सप्लाई कर्व के लिए ध्यान रखना कि सप्लाई कर्व ओरिजिन से राइट में है तो क्या ओरिजिन के साथ है सॉर्ट ऑफ 45 डिग्री लाइन, तो क्या सप्लाई कर्व ओरिजिन से बाहर निकल गया और दूसरे उसमें चला गया तो क्या? अच्छा, एक और बात मैं पूछ सकती हूँ एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए,
परफेक्ट कंपटीशन आपको पता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन कब बनेगा? दैट आई कैन आस्क. सो मैंने ये लास्ट वीडियोस, पहले वाले वीडियोस चेक करना. व्हेन कैन यू से दैट दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, एंड सो perfect competition turns to be when only 3 conditions of perfect competition are fulfilled. When does it become pure competition? ठीक है, तो ये with this I end, and very soon we are keeping a test on monopoly, I mean markets, which is a very very important chapter. So there are in total 4 videos for this. Please go through.